Welcome to the earnings conference call of Ice Make Refrigeration Limited, arranged by Ariana Matasco to discuss the financial results for Q4 and FY25. At this moment, all participant lines are in the listen-only mode. Later, we will conduct a question-and-answer session. At that time, if you wish to ask a question, please press star and 1 on your touchtone keypad. Please note that this conference is recorded. I now hand the conference over to Mr. Aryan Rana. Thank you, and over to you, sir. Thanks, Zaiko. Good afternoon, everyone, and a very warm welcome to the Ice Make Refrigeration Limited Q4 and full year FY25 earnings conference call. We appreciate your time and participation today. Our financial results for the quarter and full year are available on the company's website as well as on the stock exchange we are listed. Before we begin, I would like to remind you that today's discussion may include forward-looking statements. These statements are based on current expectations and assumptions and are subject to certain risks and uncertainties, both known and unknown, that may cause actual results to differ materially. We encourage participants to review these forward-looking statements in conjunction with the risk disclosures outlined in our investor presentations and regulatory filings. Now, I would like to give you a brief background of the company. Ice Make Refrigeration Limited is one of India's leading manufacturers of innovative and energy-efficient refrigeration solutions. Since 1993, the company has catered to the diverse cooling needs of industries like dairy, food processing, hospitality, pharmaceuticals, logistics, and more. With a product portfolio spanning over 50-plus solutions across 5 core verticals like cold rooms, commercial refrigeration, industrial refrigeration, transport refrigeration, and ammonia-based systems, the company continues to lead with a customer-centric and technology-driven approach. Ice Make serves clients across India and exports to over 24 countries. Please allow me to now introduce our management team. It is my privilege to introduce the leadership team joining us today to discuss the financial performance and the strategic outlook. I welcome Mr. Chantanti Patel, Chairman and Managing Director, Mr. Nikhil Bhatt, Vice President, Strategy, Ankit Patel, Chief Financial Officer, and Mr. Mandar Desai, Company Secretary and Compliance Officer. During today's session, the management will walk us through the financial and operational performance for Q4 and FY25, strategic updates and business drivers, and also give us key market opportunities and the road for the sustainable growth. With that, I would now like to hand over the call to our Chairman and Managing Director, Mr. Chantanti Patel, sir. The floor is yours, sir. Thank you so much. नमस्कार, मैं चंद्रकांत पटेल आप सभी एनालिस्ट, इन्वेस्टर और हमारे सभी स्टेक होल्डर का इस अर्निंग कॉल में मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमेशा हम पर विश्वास जताया और हमारे साथ पिछले 8 वर्षों से लगातार इस यात्रा में जुड़े रहे हैं। इट्स माय प्लेजर टू शेयर आवर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर द क्वार्टर 4 एंड फुल फिस्कल 2025। साल 2025 में हमारे लिए एक मजबूत और महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। हमने यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने 480 करोड़ रुपए का अब तक का हाईएस्ट रेवेन्यू किया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 27% की वृद्धि है। फोर्थ क्वार्टर में हमने 180 करोड़ रुपए से अधिक रेवेन्यू की, जो क्वार्टर टू क्वार्टर आधार पर 64% इंक्रीज है। यह हमारी टीम की एफर्ट, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और बेटर परफॉर्मेंस का रिजल्ट है। हालांकि हमारा फोकस 500 करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार करने का था, लेकिन वर्ष की शुरुआत में इलेक्शन के कारण कुछ ऑर्डर डिले होने के कारण 500 करोड़ नहीं हो पाए। फिर भी Q4 की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ने दिखाया कि हम सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं।
हमारे कोर बिजनेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। नए प्लांट और कैपेक्स इन्वेस्टमेंट से आने वाले वर्षों में कंपनी को कंटिन्यूअस ग्रोथ मिलेगी। हमने हमेशा क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और इनोवेशन को प्राथमिकता दी है। हमारा फोकस है कि आने वाले 3 से 4 साल में आइसमेक को 1000 करोड़ टॉप लाइन वाली कंपनी बनाया जाए। आपका विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम इस तरह क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और इनोवेशन की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। आगे फाइनेंशियल अपडेट के लिए मिस्टर अंकित पटेल देंगे और बिजनेस अपडेट मिस्टर निखिल भट्ट देंगे। थैंक यू। Thank you, MD sir. Very good afternoon, everyone. I am Ankit Patel, CFO of your company. I am pleased to be here again to present you financial performance of the company for the fourth quarter and full financial year ended March 25. For Q4 of FY25 consolidated performance, we delivered a strong revenue of rupees 180.82 crore in Q4 FY25, making 64% quarter-on-quarter growth and 27% year-on-year growth compared to Q4 24. Our EBITDA stood at 21.85 crore, slightly up from rupees 20.93 crore in Q4 FY24. EBITDA margin was 12.08%, which is lower than 14.9% in Q4 last year, mainly due to incremental operational cost of our new capex. Profit after tax PAT came at rupees 11.66 crore, down from rupees 14.27 crore in Q4 FY24, but higher than 2.81 crore in Q3 FY25. Earning per share EPS for the quarter stood at rupees 7.42 compared to rupees 9.06 in Q4 FY24 and rupees 1.82 in Q3 FY25. For full year financial performance, our total revenue for FY25 was 480.42 crore compared to rupees 379 crore in FY24, a 26.8% year-on-year growth. EBITDA for FY25 stood at 43.44 crore, slightly higher than rupees 41.39 crore in previous year. EBITDA margin stood at 9.04% compared to 10.92% in FY24 due to pre-planned operational expense as a part of our capital expansion. The margin is compressed a bit. Net profit for full year stood at 22.9 crore as against 26.14 crore in FY24. Due to this recent delay in operation of our new capex and full year incremental expense, along with interest burden of our term loan, depreciation of our new plant and machinery, net profit is a bit compressed. Our EPS for FY25 was rupees 14.65 compared to 16.64 in FY24. Thank you. Now I invite Mr. Nikhil Bhatt for the update on our business. Thank you, Ankit ji. Ladies and gentlemen, namaskar. It's a pleasure to share some strategic insights and business highlights for FY25. This year has been an important one for us in terms of business diversifications, regional penetrations, and strengthening our verticals. I will take a moment to walk you through the segmental and regional performance that demonstrate how well IceMake is positioned for scalable and sustainable growth. Talking of vertical-wise sales performance FY25, let me tell you all that our cold room vertical continues to be our largest revenue contributor, accounting for 50.17% of total revenue. This remains a core growth engine for us, supported by demand from industries such as dairy, pharma, food processing, and e-commerce warehousing. Our commercial refrigeration segment contributed 15.17%, driven by increased adoption in retail, restaurant chains, and quick commerce clients. The momentum in this space, especially from modern trade formats, is expected to continue in FY26.
The ammonia and industrial refrigeration verticals together contributed over 12%, fueled by demand in food park, food processing industries, ice plant, and large-scale agro infrastructure projects. We see long-term opportunity here and as India's cold chain ecosystem matures. Transport refrigeration added 7.42% to our top line and is gaining traction with QSR chains and last-mile delivery players. Meanwhile, projects, continuous pop panels and commercial freezers together contributed nearly 12.5%, validating our expansion into newer verticals. We expect this newer segment, that is continuous pop panel and chest freezers, to become significant contributors in the next 2-3 years as scale and utilization improve. As of today, I am pleased to inform you that our pending order book stands strong as approximately 171 crores. This includes significant orders across our core and emerging verticals and gives us high revenue visibility going into FY20. There are few name orders that we have on hand. That is from the Jammu Kashmir Horticulture Department. We are having a 28.5 crores orders is there. From West Bengal government, we have received about 2 orders of 42 crores. And also some of the federations, Dairy Federation as well as NDDP or some of the food processing, reputed food processing industry from India. And also we are getting new orders from the quick restaurants, orders to the leading brand in global level. Looking ahead, we are focused on the 3 core areas. That is expanding market share in cold chain and quick commerce solutions, operationalizing our few new facilities to reduce turnaround time and logistic cost, strengthening exports and product innovation for long-term global relevance. We are confident that with our diversified portfolio of 50+ innovative products, strong pan-India presence, global focus, and deep customer relationships, IceMake is well positioned to achieve its long-term goal of rupees 1,000 crore revenue by FY28. Thank you for your kind continued support, and now we look forward to your questions. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on the touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. We request participants to ask their questions in Hindi. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Our first question comes from the line of Arnav from Ambit Capital. Please go ahead. Hi. Thank you for taking my question. My first question is, how much CapEx... Sorry to interrupt you, sir. Yeah. Before you go ahead with your question, may I request you come closer to the device, sir? Your voice is slightly echoing, sir. Thank you. Is this clear now? Yes, sir. This is better, sir. Thank you. Yeah. So my question was, how much revenue can we expect from our new segments, which is the PUF panel and the commercial freezer in FY26? कंटिन्यूस पैनल की हम बात करें तो उसमें अराउंड 225 से 250 करोड़ तक की टॉप लाइन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एट सिंगल शिफ्ट फुल फ्लेज वर्किंग एंड कमर्शियल फ्रीजर में अराउंड 130 करोड़ की टॉप लाइन हम जनरेट कर सकते हैं. Okay, and we expect this entire revenue to come in FY26? Sorry? आपकी आवाज कट रही है. Am I audible? Yes, sir. May we request that you use your handset, please, sir? For FY26, it will be around 175 crores of these 2 new verticals. We are expecting about 175 crores. Okay, thank you. My next question is, what's the margin?
Sorry, your voice is not coming clear. Sir, may we request that you use your handset, please, sir? Am I audible now? Yes, sir. Yeah, my question was, what were the margins in the ammonia segment? अमोनिया में हमारा ग्रॉस मार्जिन है अराउंड 10 से लेके 14% के आसपास, 10 to 14%. And EBITDA margin? स्पेसिफिकली ग्रॉस मार्जिन कहना थोड़ा इजी रहेगा, लेकिन EBITDA मार्जिन में वैसे देखें तो उसमें और कोई इंस्टॉल कैपेसिटी, प्लांट, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज होता नहीं है. तो आरओ मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए ये बिजनेस एक बोनस बिजनेस है. तो आई थिंक ग्रॉस मार्जिन विजिबल, हम EBITDA मार्जिन वर्टिकल वाइज प्रोवाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि दूसरे काफी कॉमन ऑपरेशंस भी होते हैं. हम आपको ग्रॉस मार्जिन की गाइडेंस दे पाएंगे. ठीक है. और ये ग्रॉस मार्जिन लेवल, ये इसपे FY26 में कोई इम्प्रूवमेंट हो सकता है कि यही लेवल पर रहेगा? नहीं, ग्रॉस मार्जिन जब तक 100 करोड़ का ये टॉप लाइन नहीं होता, अगर कुछ एक कॉस्ट ऐसी है जो हम फैब्रिकेशन की इन हाउस नहीं करते, तब तक मार्जिन इंप्रूव नहीं हो सकते. 100 करोड़ के बाद में हम प्लान कर सकते हैं कि कुछ एक ऑपरेशन है, फैब्रिकेशन की एक छोटी सी शॉप बनाए, तब जाके मार्जिन इंप्रूवमेंट के कुछ चांसेस है. Okay, thank you. Thank you. Our next question comes from the line of Shashi, who is an investor. Please go ahead. हेलो, गुड आफ्टरनून. आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, गुड आफ्टरनून. हाँ, आवाज ठीक आ रही है. सर, ये जो पफ पैनल जो हम अभी बना रहे हैं, उसको क्या हम रेफ्रिजरेशन के अलावा इंसुलेशन के लिए बिल्डिंग इंसुलेशन में भी यूज करने का सोच रहे हैं भविष्य में? क्योंकि ये जो पफ पैनल का इंसुलेशन का सेगमेंट है, ये 6.3% के कैगर से ग्रो करने वाला है फॉर नेक्स्ट 8 to 9 years. तो क्या रेफ्रिजरेशन के अलावा हम इसको, चूंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी काफी अच्छा है पफ पैनल का, तो क्या हम इसको बिल्डिंग इंसुलेशन में भी यूज करने का सोच रहे हैं भविष्य में? इंसुलेशन में तो कर ही सकते हैं. उसके अलावा पीईबी बिल्डिंग, आजकल आप वेयरहाउस देखते, जितने भी पेरिशेबल प्रोडक्ट है जो कोल्ड रूम की जरूरत नहीं, कई सारी आप गेइन है जिनको अगर इंसुलेटेड पीईबी बिल्डिंग में रखा जाएगा तो प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ बढ़ता है, प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन होता है. और साथ में जितने भी बड़े हाउसिंग, कमर्शियल हाउसिंग बिल्डिंग या पब्लिक गैदरिंग बिल्डिंग है, जैसा हम देखे कि प्रगति मैदान में भारत मंडपम बिल्डिंग है, या बड़े जितने भी कन्वेंशनल सेंटर होते हैं, वहाँ भी पफ पैनल लगाने से उनकी एयर कंडीशनिंग इंस्टॉल कैपेसिटी कम हो जाती है. इनिशियली कोल्ड रूम सेगमेंट है वो कंटिन्यूस पैनल को स्टार्टअप देता है, लेकिन आगे जाके पीईबी और बिल्डिंग मटेरियल में उनका बड़ा स्कोप है. तो हम क्या हम इस दिशा में कोई कदम उठा पाए जहाँ तक रेवेन्यू की बात है? कोई हमें ऑर्डर इस तरह का मिला या फिर इस डायरेक्शन में हमारी कोई टीम काम कर रही है, मार्केटिंग टीम? हाँ, हम लोग काम करते हैं ना. हमने उसमें सेल्फ टीम है इंडिया में. जो सेकंड नंबर का जो इंस्टॉल कैपेसिटी था मैन्युफैक्चरिंग, वो ऐसे सीनियर लोग हैं हमारे साथ. तो इंडियन मार्केट को, जो कोल्ड रूम के कोल्ड स्टोरेज के अलावा सेगमेंट को, तो हमारे फोकस भी अभी वही है. जितने भी बिल्डिंग मटेरियल ट्रेडर्स है वो लोगों के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. जितने पीईबी मैन्युफैक्चरर है जो पीईबी बिल्डिंग सॉल्यूशन देते हैं, वो सब लोगों से हम लोग टाई अप करते हैं. तो हमें भी पता है कि कोल्ड रूम के अलावा वो मार्केट बड़ा है. हम कोशिश कर रहे हैं उसमें, क्योंकि प्रोडक्ट हाथ में आने का ही 5 महीने हुए ना, तो उसमें आपको ऐसा कोई सॉलिड हम टाई अप नहीं दे सकते कि आप इतने डीलर हमारे साथ है, लेकिन हो सकता है अगले 6 महीने में पूरा नेटवर्क आपको हम लोग दे सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद सर. लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, हम कंपटीशन को कैसे देख रहे हैं, जो खासकर हमें रॉकवेल से और वेस्टर्न कंपनी से जो हमें कंपटीशन मिल रहा है, खासकर विसी कूलर सेगमेंट में और बाकी सेगमेंट में भी, तो उसको हम कैसे फाइट कर रहे हैं सर? ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है. धन्यवाद. एक्चुअली कंपटीशन भी है, लेकिन सभी मैन्युफैक्चरर या ब्रांड का अपना अपना एक प्लस पॉइंट भी होता है.
क्योंकि हम लोग रेफ्रिजरेशन सेगमेंट में 30-35 साल से इंडिया में अच्छा काम कर रहे, लॉट ऑफ सॉल्यूशन से हमारे जो एंड यूजर है उससे हमारे अच्छे रिलेशन है, अच्छे बिजनेस ट्रांजेक्शन रेगुलरली चलते हैं। तो कंपटीशन में ऐसा नहीं है कि हमें हमारी प्रोडक्ट को लोग एक टेस्ट करने के बाद बोलेंगे कि हम बाद में टेस्टिंग के बाद करेंगे, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप है आइसमैक प्रोडक्ट पे, जो सर्विस और क्वालिटी का एक इमेज है, उसको लेके हमने हमारी पहली सीजन थी कमर्शियल में वीजी कूलर का भी इंस्टॉल कैपेसिटी इतना ज्यादा नहीं है, उसको हम लोग हमारे कमर्शियल फैसिलिटी में मॉडिफिकेशन करके नंबर बढ़ाएंगे। लेकिन चेस्ट फ्रीजर में हम लोगों ने फरवरी मार्च जो उसका कोर सीजन बोला जाता है उसमें अच्छा काम किया। हमें मार्केट ने जो रिस्पांस दिया तो ऐसा नहीं लगा कि ये कंपटीशन में हम नई ब्रांड है, हमें कोई प्रॉब्लम। तो हमें कॉन्फिडेंस भी था कि हम ये प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो हम आसानी से एक लेवल की ब्रांड का लोग हमें वेटेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, फ्यूचर चैलेंजेस के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Thank you. Thank you. The next question comes from the line of Bhavya Shah from 3A Financial Services. Please go ahead. Bhavya Shah, your line has been unmuted. Please go ahead with your question. Hello. Yes. Good afternoon, sir. Congratulations for the great set of numbers. So my question is कि हमारा सबसे अच्छा बेस्ट परफॉर्मिंग सेगमेंट कोल्ड रूम है, तो आर वी गोइंग टू डू एनी कैपेक्स इन कोल्ड रूम सेगमेंट? करंट ईयर में हमारे पास जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को मॉडर्नाइजेशन और सेमी ऑटोमेशन के लिए एक कैपेक्स है, लेकिन उनके लिए कोई अलग लैंड और बिल्डिंग लेके जो कैपेक्स है वैसा नहीं है। एग्जिस्टिंग मशीनरी में मेन पावर लेस, तो क्वालिटी इंप्रूव करे, वर्कमैनशिप बेटर हो, उसके लिए हम लोग करेंगे। हमारा टोटल कैपेक्स है करंट ईयर में 20 करोड़ है हमारे, और वर्टिकल भी है। जैसा हमारे पहले सवाल था कि अमोनिया में मार्जिन इंप्रूव होने का चांस है, तो हम लोगों ने कहीं पहले कॉल से हम बोलते आए हुए कि हम 100 करोड़ की टॉप लाइन से अमोनिया को पहुंचाएंगे। तो उसमें कई ऐसी फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट है हम जो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो ऐसे करंट में हम 20 CR का जो हमारा कैपेक्स है में डिसकंटिन्यूस पैनल जो हमारा 50% बिजनेस रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, उसमें हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। एंड हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू का कैपेसिटी कितना है एक ईयर में? हम अभी ये नया कैपेक्स किया है, नया कैपेक्स किया है, उसके बाद में हम 800 से 850 करोड़ की टॉप लाइन हम अचीव कर पाएंगे। ओके। एंड जो आपका टारगेट है 2000 करोड़ टॉप लाइन इन 3 to 4 years, तो उसके लिए क्या हमारा प्लान रहेगा? टारगेट 1000 है हमारा 2028 में, FY28 में। तो उसके लिए जैसे अभी जो लास्ट ईयर हमने जो नया वर्टिकल सेट किया है, तो उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, उसको थोड़ा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा, उसका ब्रांडिंग मार्केटिंग जो भी एफर्ट्स है वो हम करते रहे हैं। और उसके साथ साथ पैरेलल जो हमारे एग्जिस्टिंग बाकी जो प्रोडक्ट है फूड सेगमेंट रिलेटेड, ये जो डिहाइड्रेशन वाला जो वर्टिकल या प्रोडक्ट है, उसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का ग्रोथ अच्छा है, तो वो वर्टिकल से भी हमें एक अच्छे रेवेन्यू जनरेट होने का सोच देख रहे हैं। और साथ में अमोनिया जो हमने पिछले 6-7 साल से शुरू किया है, उसका भी एक अच्छा अभी रेपो हो गया है, और हमें जो कई सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स है या डेयरी में हम बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो ये सब फैक्टर से कि हमें लगता है कि हम 1000 करोड़ तक हम आगे जाएंगे। और साथ में ई कॉमर्स भी अभी डेवलप हो रहा है, तो वो वर्टिकल से वो एरिया से भी काफ़ी सारे रेवेन्यू जनरेट होती है। एंड सर हमारा बॉटम लाइन पैट मार्जिन इंक्रीज होने का कुछ चांसेस, एंड हाउ मच इट कैन इंक्रीज, इधर तक?
वैसे पैट में जैसे हमने नया कैपेक्स किया हुआ है तो अपकमिंग फुल ईयर में भी हम देखेंगे तो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन की कॉस्ट आएगी. वी आर यूजिंग WDV डेप्रिसिएशन मेथड. तो इनिशियल ईयर में डेप्रिसिएशन ज़्यादा आता है, बट हम EBITDA को टैप कर रहे हैं. ये तो ऐसा है कि डेप्रिसिएशन एक बार आ गया या टर्म लोन का रीपेमेंट हो गया तो ये सारी कॉस्ट हमेशा के लिए नहीं रहेगी. हम EBITDA मार्जिन को टैप करते हैं. हमें लगता है 9.5 से 10.5 वाली जो सस्टेनेबल रेंज है उसी रेंज में हमारा मार्जिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ सकता है. अच्छा, ओके. एंड हमारे जो पुराने 5 प्रोडक्ट है, कोल्ड रूम, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन, अमोनिया, ट्रांसपोर्ट, वो सबका मैक्सिमम 1 ईयर में कैपेसिटी 500 करोड़ है. इज दिस माय अंडरस्टैंडिंग राइट? मतलब पुराने 5 वर्टिकल है उसमें हम 550 तक जा सकते हैं, 550 करोड़ तक. एंड जो हमारा 1000 करोड़ का टारगेट है उसमें पुराने वर्टिकल में 550 करोड़ और नए वर्टिकल में 450 करोड़ का रेवेन्यू हो सकता है. वैसे इन बिटवीन थोड़ा सा इंटरनल रिशफलिंग भी होगा. हमारे नए कैपेक्स में कुछ हो सकता है कि ये वाले प्लांट में थोड़ी सी स्पेस एडअप करके एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं. वो अभी नेक्स्ट फेज ऑफ कैपेक्स में उसका डिटरमाइन होगा. हम अभी एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर में कितनी टॉप लाइन कर पाएंगे उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये सारे वर्टिकल ग्रोइंग है. बट गोइंग फॉरवर्ड हमारा नया जो कैपेक्स है वो ऑटोमेशन के ऊपर फोकस है, लेकिन इसमें भी डिमांड अच्छी है तो थोड़ा सा इंटरनल रीशफलिंग करके सेटअप चेंज करके स्पेस बढ़ा के हम इसमें भी इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं. ओके. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर. Thank you. The next question comes from the line of Tej from Niveshaay. Please go ahead. Yeah, thank you so much for the opportunity and congratulations to the entire team on a wonderful financial year. सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा फिर से टॉप लाइन रिगार्डिंग है. पहला कि जैसे हमें जैसे Q3 में भी बात हुआ था, वी वर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट कि लेट्स से अपन 500 करोड़ क्लोज कर लेंगे ना. गुड कंट्रीब्यूशन हमारा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नए बिजनेस से भी आएगा. तो मेरा उस पर क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द रीजन व्हिच लेड टू दिस डिले. कुछ प्रोडक्शन साइड इशू था कि लॉजिस्टिकल इशू था? बिकॉज आई सी कि हमारा जैसे एंड ऑफ इन्वेंट्री भी काफी ऑलमोस्ट 100 करोड़ का इन्वेंट्री खड़ा है विच इज जनरली अबाउट 60-70 करोड़. सो वाज देयर एनी पर्टिकुलर इशू व्हिच लेड टू द डिले, और लेट्स अगर वो नहीं होता देन वी वुड हैव बीन एबल टू अचीव दिस 500 करोड़. इफ यू कुड जस्ट प्रॉब्ली इस पर थोड़ा एक्सप्लेन कर सके. मतलब फर्स्ट जो रीजन है, जो हमारे नए वर्टिकल है, दोनों प्लांट है, उसका ऑपरेशन डिले हुआ ड्यू टू सिविल. मतलब सिविल का काम थोड़ा सा लेट हो गया. अगर ये वर्टिकल थोड़े से जो पहले प्लान किया था उस टाइम पे शुरू हो जाते तो 500 करोड़ या उससे भी थोड़ा हायर टॉप लाइन हम कर पाते थे. दूसरा आपने पूछा था कि हमने इन्वेंटरी ये जो है वो 100 करोड़ प्लस हो गई है. तो नेचुरली जो 2 नए प्लांट आए हैं उसमें भी हमें रॉ मटेरियल और उसका प्रोक्योरमेंट करके रखना है. डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा तो इतनी ज्यादा इन्वेंटरी हाइक आपको देखने नहीं मिलेगी. फर्दर क्विक कॉमर्स और कुछ एक ऐसे वर्टिकल भी है जिसमें उन्होंने हमें काफी अच्छे हेल्दी एडवांस दे के रखे हुए हैं. अभी मार्च के बैलेंस शीट की मैं बात करूं तो हमारे पास 25 से 27 करोड़ के आसपास के कस्टमर के एडवांस आके पड़े हुए हैं. तो उन्होंने भी ऐसा बोला है कि जब कभी भी हमारी डिमांड आए तो मटेरियल शॉर्टेज की वजह से आप शॉर्ट सप्लाई ना करो. तो और उनके प्लानिंग भी उन्होंने हमें एडवांस में दिए हुए थे. उसके रीजन के तहत हमने ये इन्वेंटरी भी थोड़ी बढ़ाई हुई थी. गॉट इट. और सर ये क्वार्टर कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा फ्रॉम द न्यू बिजनेस दैट इज कंटिन्यूस फॉक्स पैनल और द फ्रीजर्स वाले? सॉरी, मतलब अपकमिंग नए फाइनेंशियल ईयर में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा? ये क्वार्टर में क्या कंट्रीब्यूशन था? Q4 में इन दोनों का कंट्रीब्यूशन अराउंड 23 करोड़ के आसपास था. 20 से 23 करोड़. मतलब फुल फाइनेंशियल ईयर में 23 करोड़ था और इस स्पेसिफिक क्वार्टर में शायद 20 करोड़ था. गॉट इट. और इस पे क्या एबिटा बना है या फिर एबिटा लेवल पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, या इस पे एबिटा लेवल पे कितना परसेंटेज? अभी उनका तो ब्रेक इवन आएगा. मतलब ये ब्रेक इवन वाला पॉइंट भी नहीं है उनका. तो अभी उनके वर्टिकल फुल प्लेज जब शुरू होंगे उस टाइम पे ये वाले एबिटा लेवल वो मैच कर लेंगे. लेकिन इनिशियल ईयर में हार्डली
2 to 3 मंथ के ऑपरेशन में वो EBITDA लेवल और वो उसका कंट्रीब्यूशन तो कुछ मतलब ऐसा है ही नहीं, ऐसा मान सकते हैं। तो आप बोलो नेक्स्ट ईयर ऑलमोस्ट ये बिजनेस से भी 7-8% पे EBITDA पे पहुंच सकते हैं अपन जो नेक्स्ट ईयर 170 को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने टारगेट किया है 150 करोड़ प्लस के आसपास का दोनों नए वर्टिकल का कंट्रीब्यूशन रहेगा। गॉट इट। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ऑन ओवरऑल डिमांड पे है, जैसे इस बार थोड़े समर जो एक्सपेक्टेड थे वो नहीं था, मॉनसून ऑल्सो अर्ली आ चुका है, और ये सिग्निफिकेंटली मेरे नए दो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सवाल है, बिकॉज ये थोड़ा समर मॉनसून अर्ली और समर जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं होने से वो रिटेलर्स का काफी डिमांड आउटलुक थोड़ा स्लो हो गया है, जिससे ऑफटेक फॉर एटलीस्ट आर डीप फ्रीजर वीसी कूलर कुड भी लो। सो उस हिसाब से आपका जो पाइपलाइन था और आप जैसे डीलर पर्सपेक्टिव से बता सकते डिमांड सिनेरियो क्या है, बिकॉज जो अभी फिनोमेना हुआ कि तो जल्दी बारिश आ चुकी है और जो समर एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुए on our new business and on a broader level also, if you could just help us understand कि एंड यूजर के हिसाब से भी फॉर आवर कोल्ड रूम और लेट्स से इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन के हिसाब से भी डिमांड क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जो आपने जैसे बोला कि 1000 करोड़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय 28, व्हाट रेट ऑफ ग्रोथ आर वी एक्सपेक्टिंग फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, और थोड़ा डिमांड आउटलुक पे आप थोड़ा अगर डिटेल में अगर आप अपना विचार बता सके। एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं कि समर कंसिस्टेंट समर नहीं है, बीच में मानसून हो गया, तो ऐसा खास हमारे पास जो प्रोडक्ट है एयर कंडीशन को ज्यादा इफेक्ट करते हैं। रेफ्रिजरेशन ज्यादातर जो है फोर्थ क्वार्टर में ही सब लोग एडवांस प्लानिंग करके कोल्ड रूम और ये बिजनेस तो हो ही जाता है। हम लोग वीजी कूलर और चेस्ट फ्रीजर में हमारे लिए पहला साल है, पहली बार ये फर्स्ट क्वार्टर हम फेस कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है हमारा ईयरली टारगेट जो है चेस्ट फ्रीजर वीजी कूलर का, तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वार्टर में अब तक का जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा है, क्योंकि हमारे पास इतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी नहीं है जो बड़े प्लेयर की है, जो लोग इतनी बड़ी कैपेसिटी इंस्टॉल करके बैठे हैं, उनको ये प्रॉब्लम है। तो लास्ट सीजन और लास्ट ईयर के मुकाबले में वो डिमांड नहीं दिख रही है। लास्ट ईयर एयर कंडीशनिंग फ्रीजर में इतनी शॉर्टेज थी, सबको अच्छा एक अपॉर्चुनिटी भी था बिजनेस का। तो लेकिन आप और सेगमेंट भी देखे, जितने भी क्विक कॉमर्स हम लोग अच्छा काम करते क्विक कॉमर्स सेगमेंट में, उनका बूम तो अभी भी ऐसा ही है, उसको सीजन ऑफ सीजन का इफेक्ट नहीं होता। और हमारे पास कई सारे और टेंडर के बिजनेस भी है प्रोजेक्ट, तो हमारे लिए फोर्थ क्वार्टर लास्ट ईयर के मुकाबले में अच्छा है। समझा, गॉट इट। सर क्विक कॉमर्स से ये साल हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होगा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू? रफली अराउंड 7% या 7 to 10% के आसपास एक्सपेक्ट करते हैं, मिनिमम 7 to 10%। हमारे पास कई ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो हम लोग एक कस्टमाइज प्रोडक्ट करके देते, कभी कभी वो लोग ऐसे कोई स्पेशल ऑर्डर निकालते, क्योंकि अभी तो 10 महीने और पड़े हुए ना, पूरे साल की अगर हम बात करें तो अभी जो रफ्तार से चल रहा है ऐसे चलेंगे तो 7 to 10% तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं, ज्यादा भी हो सकता है अगर पिछले महीनों में उन लोगों का एग्रेसिव प्लान होता है तो। गॉट इट। और सर मेरा थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा ऑन मोर सॉर्ट ऑफ एक्सपोर्ट था, जैसे हमने ऑलरेडी एएलएम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करके रखा था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिल जाएगा, एंड देन यूएस में भी अपना बिजनेस स्टार्ट होने वाला था, तो उस पर आप एक बार क्या प्रोग्रेस है वो बता सकते हो। और सेकेंड इज मैं देख रहा हूँ कि अपन नेपाल में भी काफी एक्टिविटी कर रहे हैं, नेपाल में भी काफी वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हैं, तो नेपाल बिजनेस में हमारा क्या विचार है और कितना अग्रेसिवली ये दो मार्केट हम देख रहे हैं? एक्चुअली जो आपने यूएस सर्टिफिकेशन बारे में पूछा, तो दैट वाज अंडर प्रोसेस लास्ट टाइम। अभी रिसेंटली वो यूएस सर्टिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और कहीं जो सिलेक्टिव मॉडल्स में हमने अप्लाई किया था वो हमारे अप्रूवल हो गई है। तो एक्सपोर्ट के लिए अभी यूएस में जो हमारे एफर्ट्स थे उसको हम थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिवली करेंगे। जो 2-3 OEM को आइडेंटिफाई किया था या वहाँ के लोकल डीलर के हमने आइडेंटिफाई किए थे, तो वो हमें डेफिनेटली हेल्प करेगा, यूएस सर्टिफिकेशन से हमारा बिजनेस बढ़ेगा। और जो नेपाल की बात आप कर रहे हो, नेपाल में अभी जो आप ज़्यादा एक्टिविटी देख रहे हो, तो इसमें ऐसा है कि हमने नेपाल के लिए लोकल एम्प्लॉयज़ को हमने हायर किया है कि जो नेपाल में आइसमेक की प्रोडक्ट को थोड़ा ज़्यादा उसको पब्लिकली प्रेजेंट कर सके, तो दैट एक्टिविटी इज गोइंग ऑन। वैसे नेपाल में हमारा एक्सपोर्ट कई सालों से ज़्यादा है,
तो अभी इस साल ये एक अलग मोड से वहाँ का लोकल एम्प्लॉय के साथ से वो हमारा नेपाल का बिजनेस बढ़ने का हमें अपॉर्चुनिटी दिख रहा है और वो ग्रो भी होगा। गॉट इट। तो सर ये नंबर टर्म्स में मतलब कितना बड़ा बन सकता है एक्सपोर्ट फॉर नेक्स्ट ईयर, और मार्जिन साइड से एक्सपोर्ट में लेट्स से नंबर्स अच्छे हो गए, मतलब थोड़ा मार्जिन पर्सपेक्टिव और नंबर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज लेट्स अब यूएस वाला सर्टिफिकेशन भी मिला और आपने बोला कि ऑलरेडी डीलर से भी बात हो चुकी है, तो नंबर साइड से अगर आप कुछ बता सकते हो। एक्चुअली हम लास्ट टाइम जो हमारा एक्सपोर्ट का था वो इतना हमें एग्रेसिवली नहीं हो पाया, मगर इस साल भी हम वही 25 करोड़ का ही टारगेट लेके कंसिडर करते हैं कि हम एक्सपेक्टिंग 25 करोड़ बिजनेस फ्रॉम एक्सपोर्ट। और जो मार्जिन की बात आप कर रहे हो, तो इतना मार्जिन में इतना ये प्रोडक्ट को देखते हुए सर्विस बेस है, तो मार्जिनली इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कोई हम उसको डोमेस्टिकली छोड़ के एक्सपोर्ट को ज़्यादा प्रमोशन करें, क्योंकि ये प्रोडक्ट का नेचर ऐसा है कि मार्जिन ज़्यादा नहीं हो सकता। गॉट इट, गॉट इट। और जैसे या सॉरी 8 करोड़ की ऑर्डर बुक है अभी एक्सपोर्ट की, प्लस 7-8 करोड़ के कुछ डायलॉग भी चल रहे हैं। सॉरी कितने ऑर्डर बुक है? 1 करोड़ बोला आपने? 6 करोड़ पेंडिंग ऑर्डर बुक है स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट की। ओके, गॉट इट। और कुछ एक 7 से 8 करोड़ के डायलॉग अभी चल रहे हैं, उसको कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव हैं वो मटेरियलाइज हो सकते हैं। गॉट इट, गॉट इट। और गॉट इट सर, ये मेरा और एक क्वेश्चन और मोर सॉर्ट ऑफ सप्लाई साइड क्वेश्चन है। जैसे कंप्रेसर और लेट्स से मॉडरेट कॉस्ट अपन का ओवरऑल रेफ्रिजरेशन था, और ये साल मिडिल ऑफ द ईयर ठीक है गवर्नमेंट ने बीएस लगा तो वो एक्सटेंड भी कर दिया, तो मेरे को थोड़ा उस साइड से जाना कि अपना क्या अरेंजमेंट है। और लेट्स से अभी गवर्नमेंट ने 1 साल ऑर्डर एक्सटेंड कर दिया, बट लेट्स से आफ्टर 1 साल फिर से वो रेगुलेशन आ गया, सो अपना फॉर सप्लाई ऑफ गेटिंग सप्लाई ऑफ कंप्रेसर अभी क्या रिलेशनशिप है, और हम डोमेस्टिकली सोर्स कहाँ से कर रहे हैं, देन आफ्टर दैट रेगुलेशन अगर गवर्नमेंट ने बीएस लगा दिया, कुछ इंपोर्ट ड्यूटी और मे बी अदर को रेगुलेशन लगा दिया ऑन कंप्रेसर, क्या है हमें इम्पैक्ट कर सकता है? और थोड़ा एक बार मेरे को वो साइड से जानना था। एक्चुअली कंप्रेसर को लेके हमारा जो डिमांड है वो इतना नंबर्स में हमारे और कंपटीटर के सामने इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुका है, अच्छे प्राइस में काम होता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है। और तो हम लोग थाईलैंड और ये कुछ कंट्री है जो चाइना को छोड़ के, तो चाइनीज कंपनी ने भी अभी इंडिया के सप्लाई के लिए और कंट्री में अपनी जो फैक्ट्री है उसकी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग किया। तो मुझे नहीं लगता है कि इंडियन मार्केट का जो कमर्शियल फ्रीजर के जो 20 लाख कंप्रेसर का मार्केट को कोई मिस करेगा। उनके लिए उनके जो सब्स्टिट्यूट है वो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कहीं और कोई कंट्री में करेगा। और इंडिया में भी एक कंपनी ने तो ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, कुछ लोग और भी उसके लिए एग्रेसिव है और शायद कर भी लेंगे अगले ये पीरियड खत्म होने के पहले। Thank you. Mr. Tej, may we request that you return to the question queue for follow-up questions, as there are several participants waiting for their turn. Thank you. Our next question comes from the line of Mosam Shah from Wealth Guardian. Please go ahead. Hello. Congratulations, sir, on a good set of numbers. So मुझे ये पूछना था, अपना ज्योग्राफी मिक्स कैसा है? हमें रेवेन्यू जनरेशन कौन से एरिया से ज्यादा आया है एंड हाउ इट इज? जियोग्राफिकली अगर नेशनल लेवल की बात करें तो जैसे हमारा वेस्ट जोन डोमिनेटिंग है और वेस्ट में हमेशा ज़्यादा ही रहता है, तो वो 1% हमारा रेवेन्यू शेयरिंग है। और ईस्ट साइड में कंपैरेटिवली लास्ट ईयर तो वो ग्रोथ दिख रहा है, अराउंड 18% का शेयरिंग है। नॉर्थ साइड में 11% है, साउथ में थोड़ा इंक्रीज होके 14% है। बाकी जो ऑल इंडिया हमारे साथ OEM है, डीलर एसोसिएट है या जो है उनके, और एक्सपोर्ट को छोड़े तो 3% के उसका कंट्रीब्यूशन है। तो जोनल वाइज करें तो हम ईस्ट में ग्रो कर रहे हैं, साउथ में ग्रोथ कर रहे हैं, और नॉर्थ में भी थोड़ा हमने मेंटेन किया है। और ईस्ट में अभी कंट्रीब्यूटर हमने ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास आज हाथ में ऑर्डर भी ज़्यादा है, जो बड़े प्रोजेक्ट है वो ईस्ट साइड से ही है। ओके ओके ओके।
और हम वर्किंग कैपिटल की बात करें तो हमारे क्रेडिटर्स इस बार ज्यादा है, उसका कोई स्पेसिफिक रीजन है, क्या है? हमारे क्रेडिट टर्म्स एक्सटेंड हुए हैं? वैसे जो भी हमारी बिजनेस साइकिल है और इस बार क्विक कॉमर्स के ऑर्डर मिले हैं, थोड़े से कंप्रेसर्स की भी जो बात हुई थी उसमें भी हमने एडवांस में कुछ कंप्रेसर प्रोक्योर करके रखे हुए थे। भले हमारे क्वांटिटी ज़्यादा होती नहीं है इन टर्म्स ऑफ बाकी कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो वो भी एक इश्यू था जिसकी वजह से हमने इन्वेंटरी होल्ड करके रखी थी। फर्दर हमारे जो नए वर्टिकल जो नए प्लान शुरू हुए हैं उसमें भी हमने प्रोक्योरमेंट इन्वेंटरी का किया हुआ था। कुछ एक क्विक कॉमर्स और उनके अच्छे ऑर्डर्स थे, उन्होंने एडवांस भी हमें अच्छा दिया था और हमने मटेरियल भी स्टोर करके रखा हुआ था। तो गोइंग फॉरवर्ड अपकमिंग 2 to 3 मंथ्स में स्टॉक का लिक्विडेशन हो जाएगा और क्रेडिट पीरियड भी थोड़े से एक्सटेंड हुए हैं क्योंकि हमारे रनिंग रेगुलर बिजनेस चलते हैं, प्लस रिपीट ऑर्डर्स में ग्रोथ के साथ हम उनको ऑर्डर देते हैं तो थोड़े बहुत क्रेडिट के डेज भी हमें फेवरेबल मिलते हैं। ओके, और आगे जाके हमारे वर्किंग कैपिटल डेज क्या रेंज में रहेंगे? वैसे ये नया सीएफ का जो बिजनेस है वो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क से होने वाला बिजनेस है, लेकिन कंटिन्यूअस पैनल में जो नया बिजनेस है उसमें हम बिफोर डिस्पैच 100% पेमेंट आ जाता है, अपार्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट ओनली, जो मेजोरिटी बिजनेस में नहीं होगा। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल मोरलेस हम 6 टाइम के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़े से एग्रेसिव जाएंगे तो स्लाइटली हियर एंड देयर, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Our next question comes from the line of Resha Mehta from GreenEdge Wealth Services. Please go ahead. Thank you. पहला सवाल जो है वो ये है, तो अभी हमारा जो फेज 1 का केपेक्स है वो तो हो गया राइट, बट फेज 2 का जो केपेक्स है तो वो अभी FY26 में शुरू होने वाला है या अभी FY27 में भी जा सकता है? कितना आउटले रहेगा, कौन से प्रोडक्ट कैटेगरीज के लिए रहेगा एंड फंडिंग कैसा रहेगा? एक्चुअली जो हमारा फेज 2 में हमने जो कैपेक्स का प्लान किया है वो अप्रोक्सीमेट 150 करोड़ प्लस होगा। और जैसे हमने पहले बताया था कि भी आफ्टर ये 2 फैसिलिटी की एस्टैब्लिश करके यानी फेज 1 के बाद हम उसको थोड़ा रिव्यू करेंगे अप्रैल 25 में। तो अभी लगता है एज ऑन नाउ हमने जो रिव्यू किया है वो हिसाब से वो एरिया में या जो वो प्रोडक्ट कंटिन्यूस पॉप पैनल में उसमें हम ज़्यादा कैपेक्स अभी उसके बारे में नहीं प्लान करेंगे। मगर बाकी ऐसी 2-4 अपॉर्चुनिटी हमें सामने दिख रही है कि जो हमें शायद ये करंट फाइनेंशियल ईयर में उसमें से एक अपॉर्चुनिटी क्लोज हो सकती है, जैसे एक्विजिशन भी हो सकता है या कोई कोलैबोरेशन भी हो सकता है। इस तरह के डायलॉग कहीं चल रहे हैं, तो वी आर होपफुल कि ये साल में वो हमें कैपेक्स का जो जरूरी रहेगा तो उसके लिए रहेगा। उसके अलावा जो हम जियोग्राफिकल थोड़ा प्लान कर रहे हैं उसको एक्सटेंशन करने के लिए भी हमें कुछ फंडिंग करना पड़ेगा। और बाकी जो फंड की रिक्वायरमेंट है तो जो 150 करोड़ का 100% तो शायद ये 26 में नहीं होगा, मगर 27 तक भी जा, क्योंकि हमारा ये 3 साल का प्रोजेक्शन था 200 करोड़ से ज़्यादा जो कैपेक्स का था जो हमने 1 साल पहले बताया था। और फंडिंग के बारे में अभी एज ऑफ नाउ हमने पहले भी बताया कि वी आर ओपन फॉर ऑल अपॉर्चुनिटी, कि हमारे पास बैंक लोन्स भी अवेलेबल है और फंडिंग के लिए इक्विटी के थ्रू भी हम उसको प्लान करेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन दिस अपॉर्चुनिटी एंड टाइम, दोनों के हिसाब से हम वी आर ओपन फॉर दैट। तो बेसिकली जो भी केपेक्स होगा आई मीन वो फ्रॉम अ लैंड एक्विजिशन या प्लांट डालने के लिए नहीं होगा राइट? दिस इज इतना मतलब समझ आ रहा है जैसे आप बता रहे हो राइट? इट विल बी एक एक्विजिशन के लिए या फिर कुछ कोलैबोरेशन के लिए जैसे आप बता रहे हो, बट देयर इज गोइंग टू बी लैंड खरीद के हम कोई प्लांट बिठाए, कैपेसिटी बिठाए, वैसा वाला कोई स्पेसिफिक केपेक्स नहीं होने वाला राइट ये साल में? नहीं, ऐसे इंडिपेंडेंटली बात करें तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट के बारे में ऐसा कोई नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग अभी नहीं किया है, मगर गोइंग फॉरवर्ड ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं करेंगे। अभी नहीं लगता कि ये प्रायोरिटी में हम करें। कुछ एक अपॉर्चुनिटीज ऐसी चल रही है, डायलॉग ऐसे चल रहे हैं कि ये वाले प्रोजेक्ट के साथ हम उसको मटेरियलाइज करें
तो फाइनेंशियल प्लानिंग और उसके लिए टाइमिंग मतलब सही नहीं रहेगा। तो कुछ एक टाइम बाद हम उसके और में भी सोचेंगे। वो ऑलरेडी हमारे कुछ प्लानिंग में तो हमने रखा हुआ था, बट थोड़ा सा रिव्यू करने के बाद मे बी समवेयर इन सितंबर अक्टूबर हम उसके ऊपर कुछ कॉल ले सकते हैं कि भाई दूसरी अपॉर्चुनिटी में किस तरह से प्रोग्रेस है, वो देख के हम थोड़ा सा ये सेकंड वाला कॉल लेंगे। समझ गई। एंड अपना जो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट जो है बेसिकली वो जो अभी क्वार्टरली रन रेट चल रहा है, जैसे Q4 में डेप्रिसिएशन अराउंड 4 करोड़ के आसपास था और इंटरेस्ट कॉस्ट अराउंड 1.6 करोड़ के आसपास था, तो यही रन रेट मान के चले कंसिडरिंग ये जो नई कैपेसिटी 2 कैटेगरीज के लिए आई है ऑन स्ट्रीम? हाँ, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये रन रेट रहेगा। थोड़ा सा एग्रेसिव जा रहे हैं। इंटरेस्ट कॉस्ट और डेप्रिसिएशन को आप कंसीडर कर सकते हैं लास्ट Q4 वाला। ओके। एंड अगर हम ये साल की बात करें, FY26 की बात करें, तो 650 करोड़ रेवेन्यू डुएबल है या क्या गाइडेंस रहेगा बेसिकली रेवेन्यू के लिए एंड इवन एबिटा मार्जिन के लिए? 650 करोड़ का टॉप लाइन हमने पहले भी बताया था और हमें लगता है कि विथ ये जो 2 नए प्लांट है उनका फुल फ्लेज ऑपरेशन स्टार्ट होगा तो 650 करोड़ हम अचीव कर पाएंगे। 150 करोड़ प्लस का कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ हमारे नए प्लांट्स का ही रहेगा, वो हमने ऐसे टारगेट में रखा हुआ है। तो बाकी जो एग्जिस्टिंग वर्टिकल है उसमें भी हम नॉर्मल ग्रोथ परसेंटेज भी प्लान करें तो 650 करोड़ तो उतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। हमने कंजर्वेटिवली 650 करोड़ रखा हुआ है। राइट। एंड एबिटा मार्जिन और केपेक्स क्या रहेगा? केपेक्स आई एम अज्यूमिंग मेंटेनेंस केपेक्स ही रहेगा अगर हम वो बड़ा प्रोजेक्ट नहीं करते। कैपेक्स में हम बताए तो एग्जैक्टली अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमने एग्जैक्ट प्लान नहीं किया हुआ है कि यही मटेरियलाइज होगा, तो उसका आपको कॉन्क्रीट इनपुट नहीं दे पाएंगे। कुछ एक रूटीन वाला कैपेक्स जो है वो आ सकता है। राइट। एंड एबिटा मार्जिन वही 9.5-7.5% के रेंज में रहेगी। जब तक हमारे 1000 करोड़ का टॉप लाइन नहीं आता है 9.5-10.5 वाले मार्जिन ही हम टैप कर रहे हैं। कई बार ऐसा हो सकता है थोड़े बहुत मार्जिन प्लस भी हो सकते हैं या नीचे भी हो सकते हैं, बट उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन या वेरिएशन नहीं आएगा। राइट। एंड BIS हमारे सेगमेंट्स में आ चुका है कि नहीं या आने वाला है? एंड अगर आता है तो हमें क्या फायदा होगा इससे? बिकॉज एनीवेज जो हमारा टॉप कंपटीशन है वो तो एस्टैब्लिश ब्रांड्स ही है, राइट? तो इससे थोड़ा आप अगर बता सके तो। आप BIS की बात कर रहे हैं ना? राइट। BIS जो है अभी लिमिटेड हमारा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें एक या 2 प्रोडक्ट में ही एप्लीकेबल है। जो चेस्ट फ्रीजर है उसमें BIS एप्लीकेबल है और हमारे पास वो BIS अप्रूवल है और अकॉर्डिंगली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वो प्रोडक्ट के लिए। राइट। पर BIS को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं रहेगा, राइट? मेरा कहने का ये था कि बिकॉज एनीवेज हमारा जो कंपटीशन है वो भी एकदम एस्टैब्लिश ब्रांड्स ही है, तो BIS सर्टिफिकेशन उनके पास भी रहेगा। तो अगर आता है तो हम वो सर्टिफिकेशन विल बी सर्टिफाइड बट आवर प्रोडक्ट विल बी सर्टिफाइड, लेकिन कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं होगा ना हमें इससे। एक्चुअली अनऑर्गेनाइज सेगमेंट से वो आपको एक एज देता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर अगर हम वाटर कूलर जो हमारा अपकमिंग प्रोडक्ट है उसमें थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज सेगमेंट ज्यादा है तो वहाँ एक स्पेशल बेनिफिट हो सकता है। चेस्ट फ्रीजर है जो एक और प्रोडक्ट है जिसमें BIS और रेटिंग कंपलसरी है, वहाँ तो सब ऑर्गेनाइज प्लेयर है तो वो तो कंपलसरी सबके लिए कॉमन है। राइट। Okay, thank you and all the best. Thank you. Our next question comes from the line of Bhargav from Ambit. Please go ahead. Yeah, good afternoon, sir, and congrats on a good revenue execution. सर मेरा पहला सवाल ये था कि अपने बिजनेस में अगर हम देखें तो फोर्थ क्वार्टर में करीबन 40% रेवेन्यू आता है। अभी हमारे ये जो नए बिजनेसेस जो आ रहे हैं POF पैनल और आपका VC कूलर, उससे बिजनेस के सीजनलिटी में कोई फर्क पड़ेगा क्या कि मतलब अभी भी फोर्थ क्वार्टर ही बहुत ही हैवी रहेगा कि इट कैन बी स्प्रेड आउट अक्रॉस मोर क्वार्टर?
एक्चुअली चीज फ्रीजर और विजिकुलर जो है टोटल टॉप लाइन का 10%, 9-10% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करेगा। चीज फ्रीजर विजिकुलर के लिए सीजन फर्स्ट क्वार्टर भी होता है, क्योंकि समर 15 मई एंड तक चलता है। तो थोड़ा सा हमारी जो लास्ट ईयर की नई प्रोडक्ट आने के पहले की पिक्चर में थोड़ा सपोर्ट होगा, लेकिन ओवरऑल 10% कंट्रीब्यूट करने वाला वर्टिकल से इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कंटिन्यूस पैनल जो है वो कंटिन्यूस पैनल पीईबी सेगमेंट जब ओपन होगा तब भी वहाँ जितने भी मानसून शुरू होने के टाइम पे सिविल के प्रोजेक्ट स्टार्ट होते तो वहाँ भी कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है, तो कोई ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ओके। दूसरे सर, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से आपका जो नया प्लांट है वो तो काफी ऑटोमेटेड होगा कंपेयर टू जो हमारा पुराना प्लांट है, तो आपका जो यील्ड है इन टर्म्स ऑफ उस दिशा में? वैसे अभी उसका ऑप्टिमम परफॉर्मेंस आया नहीं है। आरओटी में देखे तो प्लांट और मशीनरी में प्लस ये जो थोड़ी सी लैंड हमारे पास सरप्लस भी है, उन सब में हमारा इन्वेस्टमेंट तो हुआ ही है। तो गोइंग फॉरवर्ड जब ये फुल फ्लेज ऑपरेशन में आएंगे तो आरओटी उस टाइम पे उनका बेटर होगा। हाँ, मतलब एग्जिस्टिंग प्लांट के आसपास तो आ ही जाना चाहिए ना 1-2 साल में, कि नहीं? हाँ, नहीं, एग्जिस्टिंग प्लांट के आसपास तो आ ही जाएगा। ओके। एंड लास्टली सर, वो जो पहले हम कुछ बड़े बड़े टेंडर मिस करते थे क्योंकि पीयूएफ पैनल अपने पास नहीं था, तो अभी ऐसा बोल सकते हैं कि पीयूएफ पैनल आने के बाद हमारा जो एड्रेसेबल मार्केट अपॉर्चुनिटी है वो भी काफी बढ़ गया होगा? नहीं, एक्चुअली वो बात सही है कि पहले थोड़ा हमारा लिमिटेशंस था, फिर भी हमने पहले जो आउटसोर्स करके भी बड़े प्रोजेक्ट किए थे। अभी एडेड एडवांटेज हमारा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, तो टाइमली और क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू हमें वो एडवांटेज मिलेगा। उसके अलावा जो कोऑपरेटिव फेडरेशन या डेयरी सेगमेंट है, वहाँ जो एनडीडीबी है, जो लीडिंग इंस्टीट्यूट है कि जो ये प्रोजेक्ट को लीड करती है या उसको गाइड करती है, तो वो लेवल पे हमारे प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन अप्रूवल हो गया है। तो हो सकता है कि दैट इज टू बी अप्रूव्ड नहीं मिलेगा, तो एक एडवांटेज होगा। अच्छा, ओके। और कल उठ के अगर सपोज अपने को कोई अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्डर मिल जाता है, तो क्या हम 650 करोड़ के आसपास ही सीमित है कि वी हैव द पोटेंशियल कि हम थोड़ा डबल शिफ्ट काम करके भी रेवेन्यू खींच सकते हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी? नहीं, इट इज ऑलवेज पॉसिबल, बट अभी क्या है कि हम जो रियलिस्टिक लगता है हमें एज ऑफ नाउ वो ही पकड़ के प्लान किया है। अगर वो डिपेंड्स अपॉन मार्केट, अल्टीमेटली बिजनेस तो हमें करना ही है। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वी विल फाइंड आउट आवर रिसोर्सेज एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आल्सो। ओके, great sir, and congratulations for the new expansion and all the very best. Thank you. Thank you. The next question comes from the line of Amit from HG Hawa. Please go ahead. Good afternoon, sir. Am I audible? Yes, sir. May we request you to use your handset, sir? Thank you. Yes, sir. Am I audible, sir, clearly now? Yes, sir. Please go ahead. Yeah. Thank you for the opportunity. Sir, congratulations for good set of numbers. सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। लाइक आप कोई की इनसाइट आप बता पाएंगे, लाइक जो आपने डिस्कवर किया हो पिछले 3 से 5 सालों में, जो हमारे बिजनेस को समझने में हमको एक यूनिक पॉइंट बताया? देखा जाए तो वैसे प्रोडक्ट ऑल प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड टू रेफ्रिजरेशन में ही हमने हमारा जो भी प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया है वो है। और यूनिक की बात करें तो हमने पिछले 3-4 साल नहीं मगर 5-6 साल पहले से जो हमने 2 नए प्रोडक्ट फूड प्रोसेसिंग के लिए जो है शुरू किए थे, जो हीट पंप डिहाइड्रेशन एंड फ्रीज ड्रायर। तो यूनिक प्रोडक्ट इसीलिए बोल सकते हैं कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बहुत लिमिटेड है और वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, या इधर फ्रॉम चाइना यूरोपियन से ही वो प्रोडक्ट अवेलेबल था। तो फ्रीज ड्रायर जो हमने पिछले 5 साल में हमने जो काम किया है, नाउ इट इज एस्टैब्लिश प्रोडक्ट हमारे लिए, और उसका फ्यूचर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को और जो अभी
लाइफस्टाइल है वो हिसाब से काफ़ी अच्छी लग रही है, हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वो ये क्लिनिक बोल सकते हैं। साथ में जो हमारा एमोनिया वर्टिकल्स था, जो लिमिटेशंस थे हमारे पहले 6-7 पहले कि हम वो बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकते थे, तो वो भी हमने हमारा ओवरकम कर लिया। हमारे पास काफ़ी सारे अच्छे रेफरेंसेस थे, हमने कई सारे अच्छे प्रोडक्ट्स लीडिंग ब्रांड के साथ कंप्लीट किए हैं और डेयरी फेडरेशन की ओर से भी हमें अच्छे सारे ऑर्डर्स मिले थे, तो हमने वो पूरे किए हैं। तो ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है और एक हमारे लिए बिजनेस ग्रोथ के लिए जो हमारा लिमिटेशंस था वो हमने ओवरकम किया। तो काफी सारी जो जैसे डेयरी है तो उसमें अमूल हो गया, प्लस काफी प्राइवेट प्लेयर्स है जिनका इंडस्ट्री में बड़ा नाम है, हल्दीराम हो गया, काफी सारे क्विक कॉमर्स के कस्टमर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके रिपीट ऑर्डर आ रहे हैं। तो मार्केट का जो ट्रस्ट है वो हमारी प्रोडक्ट और कंपनी के ऊपर काफी अच्छा है। प्लस हम जो भी कोई नई प्रोडक्ट ला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उनका एड्रेसेबल मार्केट सिमिलर ही है, मतलब हमें इस प्रोडक्ट को जाके बेचने के लिए कोई दूसरा मार्केट खोजने की जरूरत नहीं होती है। इसी मार्केट के अंदर हमारी प्रोडक्ट इसी कस्टमर के बीच हमें बेचना है, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा आसान रहता है। इतने पास्ट एक्सपीरियंस से लोगों का ट्रस्ट हमने गेन किया हुआ होता है। तो ग्रोथ के लिए इसी इंडस्ट्री और इसी सेगमेंट में नई चीजें आने की वजह से हमारी बॉटलनेक दूर होती है और हमारे टॉप लाइन के ग्रोथ को काफी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू फॉर द रिप्लाई सर। सर सेकंड क्वेश्चन वाज कनेक्टेड टू द ऑर्डर बैकलॉग। आप मेरे को समझा पाएंगे लाइक लास्ट ईयर का जो ऑर्डर बैकलॉग था क्या वो इस क्वार्टर में स्पिल ओवर हुआ है, या कितना ऑर्डर था लास्ट ईयर एंड इस साल का कितना ऑर्डर है? ऐसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारे ऑर्डर्स बढ़ते रहते हैं। हम रनिंग ऑर्डर बुक होती है इसलिए स्पेसिफिक क्वार्टर वाइज हम टैप नहीं करते हैं, बट लास्ट क्वार्टर के जो भी मतलब ऑर्डर थे उससे डेफिनेटली बड़ी ऑर्डर बुक ही होती है। कई बार ऐसे होते हैं डिलीवरेबल पीरियड की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, लेकिन ज्यादातर तो हमारे ऑर्डर बुक में इजाफा ही होता है। अभी की पेंडिंग ऑर्डर बुक हमारी 171 करोड़ प्लस की है ऑन हैंड ऑर्डर। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. The next question comes from the line of Bharat Gupta from Fair Value Capital. Please go ahead. हाय सर, थैंक्स फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन। सर मेरे सवाल कमर्शियल रेफ्रिजरेटर्स और वेजी कूलर को लेके हैं। इस सेगमेंट का प्राइस अगर हम ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के हिसाब से देखें तो कितना होगा, और आई थिंक बी लाइन वन ऑफ द मेजर कॉम्पिटिटर्स था इस सेगमेंट में, तो उसके प्लांट शटडाउन होने से आपको डिमांड में क्या लग रहा है कि वो गैप कैसे एड्रेस हो रहा है? इंपोर्ट से हो रहा है या डोमेस्टिकली हम और बाकी प्लेयर्स उस गैप को फुलफिल कर पा रहे हैं? एक्चुअली इंपोर्ट तो वायबल ही नहीं है, तो डोमेस्टिकली ही होता है। हम लोग वी लाइन और हमारे में फर्क इतना है कि वी लाइन जो थे वो वाइट लेबलिंग ओईएम के लिए ही काम करते थे। हमारा 70% वॉल्यूम है हमारे अपनी ब्रांड से बिक रहा है, 30% वॉल्यूम ही हम लोग में जो कोई अदर ब्रांड के लिए काम करते हैं। हालांकि हम लोग सीजन टाइम में ही हमारा प्रोडक्शन शुरू हो